हेलो, आई एम नीरा पारितोष। आपका स्वागत है फिर से एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। आई विल बी गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट्स पेरेंटिंग द पेरेंट, इट्स नॉट पेरेंटिंग द चाइल्ड. इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड अ न्यू थिंग, अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज़ रोज़ सुनिए और if you can change yourself, you can transform yourself. If it adds to your knowledge and it helps your child, please do it. We are starting the first point of view. Many years back, I read this quote that a school is a place where gold is polished and diamonds are dimmed. When I discussed this in front of a group of people, and that was a friends meet basically, and everybody wanted to say something about it because recently the government had introduced the new education policy. Under the right to education, all the children were admitted to that school where all the people who had lower financial background, they admitted their children. They were with our children in their class. Everybody categorically, told their child, no, be friends with this person, this person, this person. I just want to ask this thing. आप वैसे भी तो हेल्प करते ही थे ना. यू वर हेल्पिंग योर ड्राइवर, योर हाउस हेल्प, you were giving their children's fee. You really wanted that their children get the best education. You said हाँ मैं financial burden ले लूँगा उनको, वो जो भी 8 तक पढ़ना चाहते हैं, 12 तक पढ़ना चाहते हैं, आगे भी पढ़ना चाहते हैं, if I'm able to afford that, I will do it. Now what happened? You are being uncomfortable because that child is sharing your child's seat, your child's desk, and he is giving a tough competition to him in academics, in sports and in the other activities. So you're not liking it. आपके बच्चे को तो पता भी नहीं था financial difference क्या होते हैं. आपके बच्चे को तो मालूम भी नहीं था you had some status, so he should make friends accordingly. ये सब उसको नहीं पता था. आपने बता दिया उसको. आपके अंदर एक human aspect था and that human aspect was there in the child also. आपने उससे वो छीन लिया because you gave him instructions to do this, this and this. Make friends with this person, that person, this person. अब उसमें वो human aspect कभी नहीं आ सकेगा. Even when he grows old, he will not be able to help anybody. क्योंकि आपने उसके दिमाग में घुसा दिया ना कि ये सब नहीं करना. Don't help everybody. One more thing I want to say. When you go home, please look into his old story books. हो सकता है किसी कॉलम में, किसी अलमीरा में, किसी कॉर्नर में आपको वो स्टोरी बुक मिल जाए जिसमें कृष्ण और सुदामा की स्टोरी थी. आई होप आई हैव कन्वेड द मीनिंग, द मैसेज. योर चाइल्ड इज गेटिंग रिकग्निशन टुडे फॉर सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी और समथिंग एल्स. And now on stage, some dignitary or the principal of the school will be awarding him the medal, the certificate, everything will be given to him. And you have also been invited. As parents, you feel so proud कि मेरे बच्चे को आज प्राइज मिल रहा है. When the child sees the list, there are some names after him which he feels are not deserving. And then he tells you about this, that उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं पापा, and they are also getting the award, the same award which I am getting. I have put in efforts. What will be your response? Let me tell you the 2 responses which the parents give. One response, the parent says, कोई बात नहीं, फेक बेनिफिट पे कब तक चल जाएगा. And then you concentrate on your hard work, your talent, your creativity. Your comparison is with you, not with somebody else. कोई बात नहीं, take your prize. The other parents group, they give another response. They don't give a response, they give a reaction. अच्छा, उन्होंने कैसे किसी और को प्राइज दे दिया? That child must be influential. किसी का खास होगा. Then you started finding proofs to prove that that certificate given to that child was not a deserving one. I'm not stopping you from giving that negative response. आप दे दीजिए क्योंकि आप भी तो यही कहते हैं ना, कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए. वो सब ठीक है, but in that thing, because you were collecting proofs, आपने कुछ चीज़ें खो दी. First, आपके बच्चे को भी तो प्राइज मिल रहा था. Because you gave that response, you totally forgot that you are supposed to enjoy the merit, the certificate he is getting, the recognition he is getting. Everybody is praising him, applauding him. आपने वो सब खो दिया. Second, when you give that response or that reaction, your child feels demotivated and he announces, मैं नहीं करूँगा अब ये practice. He was talented in that field.
he should not participate, he should not do something like that in future, because your response, your reaction has demotivated him. In future also, when he goes somewhere, everywhere he gets the same type of people. आपको क्या लगता है जितने लोगों का हम नाम लेते हैं सेलिब्रिटीज का, people who have made a name, who have reached certain heights, आप लता मंगेशकर का नाम लेते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, they have touched some heights. उनके साथ ये सब नहीं हुआ होगा, उनके साथ बाकी लोगों को अवार्ड्स नहीं मिले होंगे, but they have not concentrated on the negative aspect. They have concentrated on their talent, their recognition. They made themselves better. आप भी अपने बच्चे को बोलिए ना, बाकी सब हो जाएगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन आपके बच्चे का ही लॉस कर देगा. So I'm just saying, control your reaction and stop him from becoming rebellious. He will be in office also, he will feel some other person is being promoted because he has seen your response. He will copy that. He will also rebel. In future also, everybody will be knowing him by that character, by that nature only. Please stop it. Please change your reaction. Most parents complain this. कितना homework देते हैं. There are so many assignments, submissions. मेरा बेचारा बच्चा पूरा दिन काम ही करता रहता है. Without understanding this thing, without realizing this thing, that the child is learning time management. The child is learning one more thing, how to stretch himself according to the work, according to the amount of work given to him. And one more thing the child is learning, क्योंकि वो एक ही दिन में इतना सारा काम कर रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स कर रहा है, he is grasping so much knowledge. He knows after a few years, and when you talk to him, he knows so much in comparison to an average child. But now, the parents don't stop here. They keep cribbing, they keep shielding him. Or they come to school also to fight with teachers कि आपने इतना काम क्यों दे दिया, my child is feeling overburdened. And once the child listens to this, now he knows my parents are there to shield me. His mind is shut. When he is copying everything, his mind is shut. He is not understanding anything. आपने उससे वो कॉन्फिडेंस भी छीन लिया कि कल ही उसको होमवर्क देना है, और आज जो काम वो 4-5 घंटे में करता था वो उसने 1 घंटे में ख़त्म कर दिया. आपने वो कॉन्फिडेंस द चाइल्ड गेट्स आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वर्क, उसको आज वो भी नहीं मिला. एंड वन मोर थिंग, नाउ ही विल गो इन द विक्टिम मोड. Victim mode means wherever he goes in future, he feels he is being targeted. He feels everybody is against him and everybody is planning and plotting against him. So in future, whether he goes for a new job, he feels he is not being promoted just because all the people are against him. He is overburdened just because the office people want to prove, the boss wants to prove that he is incompetent. That is why he is not being given the promotion. आपने ये तो सिखा दिया बच्चे को. This is called the dark side of this aspect. कि आपने इतना सारा काम दे दिया है, माई चाइल्ड इज़ ओवरबर्डन्ड. आपने दूसरी चीज़ तो सिखाई नहीं उसको, आपने ये बताया ही नहीं उसको दैट ही कैन अचीव अ लॉट, ही कैन गेट अ लाइफ ऑफ हिज ड्रीम्स इफ़ ही फोकसेस ऑन दैट. जो काम उसको पसंद है एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम समथिंग इन दैट फील्ड, तो शायद वो 24 आवर्स भी काम करेगा तो एक बार भी नहीं कहेगा दैट ही इज़ ओवरबर्डन्ड. ये कभी नहीं होगा. ही विल कीप वर्किंग, ही विल कीप इंजॉइंग हिज वर्क. आपने ये तो उसको सिखाया नहीं, आपने उसका टैलेंट उससे छीन लिया. क्योंकि ये सारा काम जो स्कूल ने दिया था, ये करते 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 शायद उसको अपना फील्ड समझ में आ जाता, लेकिन आपने उससे वो मौका ही नहीं दिया. आपने उससे वो छीन लिया, आपने उससे उसका हुनर छीन लिया. बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज पॉइंट, आई वॉन्ट टू कोट एन इंसिडेंट. वी वर वेरी स्मॉल, आई थिंक 11-12 years old or around this only. My uncle brought a cage in which there were many birds. It was a small cage. It was kept on the dining table of the house because it was a joint family. And we as children enjoyed it so much because the birds were so beautiful. We kept watching the birds only. हम वहीं बैठ गए, वहीं हमारा खाना होता था, वहीं सब कुछ होता था. द बर्ड्स वर सो क्यूट. जो भी आर्टिफिशियल ट्री बना हुआ था उसमें, दे यूज टू जंप ऑन डिफरेंट ब्रांचेस एंड वी ऑलवेज लाइक्ड देम. माई अंकल सेड इतना सा जो दाना बोलते, जो खाना उनका होता है, द फूड वॉज वेरी लिटिल एंड इट वॉज गिवन इन अ वेरी स्मॉल कंटेनर.
ऑलवेज यूज टू फील बेचारों को कितना कम खाना मिलता है, वी शुड गिव देम मोर। सिमिलरली वो पानी भी देते थे इतना सही, एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग एंड डांसिंग। आई थिंक दे डिडंट नो एनीथिंग। फॉर 2 to 3 days माई अंकल हैड टू गो आउट ऑफ स्टेशन, जिसको भी घर में बता के गए कि उनको इतना खाना देना है एक टाइम ही। एंड इट वॉज अ चांस फॉर अस टू हेल्प द बर्ड्स एंड ऑल द चिल्ड्रन। हमने उनको 10 times, 40 times, 100 times इतना खाना, मुट्ठी भर भर के खाना उनके पिंजरे में रख दिया। एंड द बर्ड्स डिडंट डू एनीथिंग एंड दे केप्ट ईटिंग, डांसिंग, एंड वी फेल्ट सो हैप्पी कि हमने बर्ड्स को बहुत सारा, बेचारी पता नहीं कितने दिन से भूखी होंगी, वी हैव हेल्प्ड द बर्ड्स। And after just 2 days, or I think 3 days, most of the birds died. We didn't know this. It was such a shock for us. It was such a disaster. And we came to know when our uncle confirmed this from the person from whom he had taken the cage and the birds. He said, आपने खाना बहुत ज़्यादा दे दिया होगा, and the birds couldn't digest that. इसलिए वो मर गई। It was such a shock for us. But I really feel our over love for those birds resulted in this disaster. Similarly, parents, I just want to say this thing, because you are love your child, please love them, but he is sleeping in the AC room. You are thinking, क्या उठाना बच्चे को, इतने प्यार से तो सो रहा है, चलो सोने दो। He doesn't want to eat the fruits or something which is required for his body. और आप बोल रहे कोई बात नहीं, बच्चा जो चाहता है खाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। But ultimately the child is not disciplined. जो उसके उठने का टाइम होना चाहिए था, जो सोने का टाइम होना चाहिए था, अगर आपने थोड़ी सी कोशिश की होती तो वो डिसिप्लिन्ड होता। एंड द फूड ही हैज़ ईटन, वॉट एवर ही लाइक, ही हैज़ ईटन दैट, एंड अल्टीमेटली इट इज़ लीडिंग टू ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत सारे बच्चों में और मैक्सिमम बच्चों में है आजकल। दैट इज़ लीडिंग टू मैनी हेल्थ इश्यूज़। आप सोच के देखिए, बच्चे में फ्यूचर में डायबिटीज़ या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। एंड दे से वॉट एवर द चाइल्ड हैज़ ईटन इन हिज चाइल्डहुड, एंड यू फील सो मच गिल्टी कि मैंने बचपन में उसको मना क्यों नहीं करा, उसने वो सब क्यों खाया जो उसको नहीं खाना चाहिए था। ही इज़ फीलिंग वन मोर थिंग, दैट ही इज़ नॉट एबल टू अचीव एनी थिंग, बिकॉज जो भी अचीव करना उसके लिए तो एक डिसिप्लिन चाहिए ना, कि आप इतने घंटे पढ़ते हैं, इतने बजे उठते हैं, इतने बजे सोते हैं। वो तो उसको आदत ही नहीं है, वो सारी आदतें तो बचपन में पढ़नी थी, वो आपने उनसे छीन ली। सो योर ओवर लव इज़ नॉट गिविंग हिम एनी बेनिफिट, रादर इट इज़ बीइंग डिजास्ट्रस। Please stop it. Most parents give the same story about their past. And they say, मेरे पापा बहुत strict थे and I had to abide by whatever he said. वो तो हमें इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन थी, इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन थी, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, इतने बजे उठो, ये करो, ये करो। पूरी लाइफ हम वही करते रहे। मेरे बच्चे के लिए मैं बिल्कुल ये सब नहीं करूँगा। दे हैव डिसाइडेड व्हेन देयर चाइल्ड इज स्मॉल, और वो कोई भी मिस्टेक करता है, बच्चे तो गलती करते ही हैं, एंड देयर रिस्पॉन्स इज आई विल नॉट से एनीथिंग टू माई चाइल्ड। द चाइल्ड ग्रोज, ही बिकम्स अ टीनेजर, ही अगेन मेक्स मिस्टेक्स, बट द पेरेंट स्टिक्स टू दैट थिंग, I will not say anything to my child. And now he is a grown up. His mistakes have changed into blunders. और उस ब्लंडर का क्या रेपरकशन होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी ये ड्यूटी थी कि आप उसको समझाते कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपने वो सब काम नहीं किया because you thought you will be copying your father. He was over strict and now your child should not get it. On the basis of our past record, past mistakes, past experience, we are making the future of our child. And in this way, in this case, he is not facing the positive repercussion. These are only the negative repercussions. आप सोच के तो देखिए, आपकी 10 जगह तारीफ हुई, आपके पेशेंस की, and the way you worked and the way you helped everybody, everything was beyond comparison. तारीफ के काबिल था, इसलिए आपकी हर जगह तारीफ हुई। आपके बच्चे की कहाँ तारीफ हुई है? क्योंकि उसके फादर तो आप हैं। आपने तो उसको उसके मिस्टेक्स के उसको कभी टोका ही नहीं, उसको कभी समझाया भी नहीं कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करते। सो योर चाइल्ड इज़ पेइंग फॉर योर मिस्टेक्स। यू टेक cigarettes, you take liquor. Cigarette smoking is very common for you, and whenever you meet your friends, आपको पता है पार्टीज हैं, ड्रिंकिंग तो होगी ही होगी। And when your child asks you कि अच्छा आप स्मोक क्यों कर रहे हैं पापा या मम्मा, your response is
हाँ बेटा बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस है, इतना सारा काम है, सो दैट इज़ वाई आई हैड टू टेक 2-3 cigarettes. Now you have forgotten, but the child knows that there is a handy solution in future. Whenever he has tension, whenever he has stress, उसके पास एक handy solution तो है ही. And the other thing कि जब भी friends मिलते हैं, ड्रिंकिंग तो होती है, वी इंजॉय अ लॉट, और रोज़ शाम को एक ड्रिंक पी लो, बहुत अच्छी नींद आ जाती है. अगेन यू हैव गिवन हिम अ सॉल्यूशन कि हाँ लिकर इज़ ओके. जब भी फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे तो ड्रिंकिंग तो होगी ही. एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन फ्यूचर ही टेक्स बिकॉज ही फील्स हाँ ओके है. एंड वन मोर थिंग, ही इज़ योर चाइल्ड, ही विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. आपने तो स्मोकिंग के लिए सिगरेट ली थी या आपने लेकर ली थी, ही इज़ टेकिंग समथिंग एल्स विच यू डोंट परमिट और डोंट लाइक. लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, उसने वो सब चीज़ कहाँ से ली? आपसे. So we say the children have got into drugs, got into some other kind of intoxication. कैसे चले गए वो वहाँ पे? आपने बनाया उस चीज़ को इतना नॉर्मल उनके लिए. आप रिस्पॉन्सिबल हैं. नाउ यू से नहीं उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा था, ये तो फ्रेंड सर्कल किसने देखना था? आपने ही ना पेरेंट्स. आपने नाउ द ब्लेम गेम स्टार्ट्स. We put him in that school, we put him in that college, he has those type of friends, ये हो गया वो हो गया. ये सब blame game है. Initially it started at that place when you said it is okay to have cigarettes, it is okay to take liquor. You are responsible parents. You discussed everything with your child, whether it was a problem with your colleagues in your office, or you were living in a joint family, there was a property dispute, there was any other dispute, or you were uncomfortable with anybody. आपने सब कुछ उसके साथ डिस्कस किया because you were discussing the problems and then you left it. So now you discussed it again and again. I can say that you have started enjoying the problems. तभी तो आप बार बार उसको डिस्कस कर रहे हैं. You didn't even think about the solution of these problems. Now the child also knows, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही तो डिस्कस करनी है, एंड यू आर फाइंडिंग अ पर्सन टू ब्लेम फॉर इट. आपको बस एक ब्लेम गेम के लिए एक बंदा ही तो ढूंढना है कि इनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह से ये हो गया, क्योंकि आप भी तो यही कर रहे हैं. यू आर नॉट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. एक बार सोच के तो देखिए, अगर आपको जॉइंट फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी और प्रॉब्लम थी, यू वुड हैव वेड दैट कि हाँ ये ऑल्टरनेटिव, ये सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, ये सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, इसमें मुझे थोड़ा सा लॉस है, लेट मी टेक दैट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई चाइल्ड, कि हाँ वो ये सब नेगेटिविटी ना फेस करे, हम ये कर लेते हैं, वी लिव सेपरेटली. आप ये सब कर सकते थे, आपने नहीं करा. यू ओनली डिस्कस द प्रॉब्लम. सो इट मीन्स नाउ द चाइल्ड हैज़ लर्नड दैट फ्रॉम यू. इन फ्यूचर ही इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसका टेम्परामेंट ही नहीं बनाया आपने कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. ही वॉन्ट्स टू रिमेन अवे फ्रॉम दैट. एंड सेकेंडली ही फील्स ही इज़ ऑलवेज राइट, बिकॉज आपने तो उसको ये विश्वास दिलाया है कि हमने जो कह दिया बस वही ठीक है, दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की भी ज़रूरत नहीं है. सो इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एटीट्यूड ऑल्सो. Now what have you taught him? Only crying and cribbing over a problem. आपने ये तो उसको सिखाया ही नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, सिचुएशन बेटर भी हो सकती है, कोई और ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा जा सकता है. इफ़ यू हैड सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड यू हैड कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम विथ फ्लारिंग कलर्स, आपने चैलेंज किया होता प्रॉब्लम को और आप बड़ी स्ट्रांगली उससे बाहर आए होते, योर चाइल्ड वुड हैव लर्न दैट. You have saved your child from the toxic environment. You have saved your child from any kind of toxicity. But how will you save him from yourself? The negativity which you have, your mindset which needs to change. आपने वो change नहीं करा. You need to change that. जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे, आप दूसरी तरफ देखना शुरू कर देंगे, and you are broad minded. आप दूसरे का आस्पेक्ट भी सुनेंगे. योर चाइल्ड विल डेवलप दैट.
हो सकता है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बच्चे के लिए इसलिए ना हो कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी वजह से हो। प्लीज़ ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, लिसन टू द अदर पीपल ऑल्सो, लिसन टू द अदर आस्पेक्ट ऑल्सो। आप दूसरे की जगह होते तो आप क्या करते उस वक्त, तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। मैं से मुझ को अलग करके देखिए। दिस इज कॉल्ड इन मेडिटेशन, दिस स्टेप इज़ वेरी पॉपुलर, कि आप एक बार अपने से खुद को अलग करके तो देखिए। हो सकता है आपको वो सारी नेगेटिव चीज़ें नज़र आएं और आप सोच सकें कि मैं इसमें भी गलत था, मैं इसमें भी गलत था, मैं इसमें भी गलत था। यू आर एबल टू एनालाइज योर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्शंस एंड एवरीथिंग यू हैव डन। एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ गलत हूँ, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू चेंज योर माइंड सेट। थैंक यू।